ओके, सो अभी हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वी हैव स्टार्टेड एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जिसमें कि हमने थायोफिन किया, फ्यूरान किया एंड पायरोल किया, एंड वी गॉट टू नो द स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड द रिएक्टिविटी ऑफ द ऑल three. Then the next heterocyclic compound which is there in the syllabus is pyridine. And pyridine you can see ये थोड़ा benzene को resemble करता है, but the difference मतलब अगर structure से इसको अगर आप देखें तो it is somewhat like benzene, because it is a 6-membered cyclic ring where alternate position पे we have double bonds, and since it is obeying Huckel rule 4n plus 2 pi electron system है, so it is a 6-electron system, and we say that this is also aromatic in nature. But if you see the difference, there is a heteroatom which is nitrogen in case of pyridine. So because of one atom, that is nitrogen, which is the part of ring, its properties, both chemical and physical, will be entirely different from the benzene. Now, talking about the structure may we can see I have drawn the structure this way, and you will also draw it that this way only when it will come in exams. यहाँ पे you can see we have 5 carbon atoms, or every carbon atom is bonded to hydrogen, or vertical position पे we have p this thing p orbital है, with each p orbital it is carrying one electron. Talking about nitrogen, तो nitrogen में एक तो इसके 90 डिग्री पे वी हैव अ p ऑर्बिटल कंटेनिंग वन इलेक्ट्रॉन पेयर, और साथ में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. And you can see that all including carbon and nitrogen, all the atoms they are sp2 hybrid, and that is why all are present on the same plane. एक plane पे ये lie कर रही हैं, और vertical position पे इसके पास p orbital में एक electron है. So one electron in each atom is delocalized over the 6 atoms which is forming the ring, और वो delocalization हो रही है, और contribution हर एक atom का कितना है, only one electron towards the ring resonance. And when you talk about this जो अभी हमने pyrrole furan 5 membered cyclic rings पढ़े थे, उसमें हमें क्या पता चला था कि जो हेटेरो एटम है which is pyrrole के केस में नाइट्रोजन, फ्यूरान के केस में ऑक्सीजन, एंड इन केस ऑफ थायोफिन इट इज सल्फर, तो उसका कंट्रीब्यूशन हेटेरो एटम का था 2 इलेक्ट्रॉन्स का. बट pyridine इज एंटायरली डिफरेंट. pyridine के केस में नाइट्रोजन भी एक ही इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन कर रहा है टुवर्ड्स द रिंग रेजोनेंस और द delocalization. Then we talk about the carbon nitrogen bond length. So you can see that I have drawn one solid bond and a dotted bond. It means that bond is neither double nor it is a single bond. Rather, the bond between carbon and nitrogen is in between single and double, और इसकी जो length है that is 137 picometers. इसका मतलब हुआ कि वो जो कभी ये नाइट्रोजन और ये वाले कार्बन में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो कभी इसमें और इसमें का डबल बॉन्ड आ रहा है, और जब कभी डबल बॉन्ड नहीं है तो वो सिंगली बॉन्डेड है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड. सो दैट इज व्हाई इसकी जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज इन बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड. Then if you talk about the resonance energy in case of pyridine, so that is 96 kilojoules per mole, which is very less than benzene. It means ये benzene के comparison में ज़्यादा reactive होगी, and this thing उसकी जो reactivity होगी towards the substitution reaction, that will be different in comparison to benzene. Then the next thing which is there is the preparation of pyridine. So जो first preparation है that is from, ये देखिए नीचे लिखा है pentamethylene diamine hydrochloride. अब ये कैसे बना उसको देखिए. यहाँ पे रेड में मैंने नंबरिंग किया है सारे कार्बन एटम्स का. सो दिस इज CH2 1, दिस इज 2 3 4 5. अब ये 5 मेंबर्ड में पेंटामेथिलीन हुआ, CH2 ग्रुप को हम मेथिलीन ग्रुप बोलते हैं. सो पेंटामेथिलीन वहां पे बना. बाकी डाई अमीन हाइड्रोक्लोराइड कैसे बनेगा, अगर इसका HCl हटा के हम NH2 लिखें तो इट बिकम्स अमीन NH2 NH2. इट इज अमीन बिकॉज देयर आर 2 अमीन्स, सो दैट इज डाईअमीन, और साथ में HCl है, तो दैट इज व्हाई इट इज हाइड्रोक्लोराइड.
HCl का कैसा है कि इसका हाइड्रोजन का जो लोन पेयर है, दैट H पॉजिटिव इज has taken the lone pair of nitrogen और उसने बॉन्ड बनाया है, so that is why NH2 के बजाय हम NH3 लिख रहे हैं। अगर इसको हम हीट करते हैं तो ऑन हीटिंग देयर विल बी अ लॉस ऑफ NH4Cl मॉलिक्यूल, और NH4Cl मॉलिक्यूल के साथ में एक HCl मॉलिक्यूल भी लॉस होगा, जिसको मैंने नहीं लिखा है। सो अब कैसे वो लूज हुआ, यू कैन सी, सपोज आई एम टेकिंग दिस वन नाइट्रोजन, इसमें से एक मॉलिक्यूल क्या निकला, H और Cl, ये निकल गया, ठीक है। बाकी इसके पास क्या बचा है, NH2 बन गया ये, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल निकल गया, ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल निकल गया, बट स्टिल इसमें एक हाइड्रोजन की कमी है। तो वो जो एक हाइड्रोजन होगा दैट विल बी कमिंग फ्रॉम दिस NH2 जो पीछे बचेगा। So arrowhead पे there will be loss of NH4Cl molecule plus एक और मॉलिक्यूल लिखना आपने HCl molecule which I have not written। और बाकी जो ये नाइट्रोजन है, because this NH3Cl will be going as along with the electron pair कार्बन 1 से, और ये जो बॉन्ड जब टूटेगा कार्बन 1 और नाइट्रोजन का, तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है पूरा का पूरा शिफ्ट होगा नाइट्रोजन एटम के ऊपर। एज अ रिजल्ट इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट करेगा फिर यहाँ से NH। So there, this is how the ring closure will occur and we will get this structure after the loss of two molecules, that is one is NH4Cl and the second is HCl molecule which is lost out। हमारे पास जो आगे बनेगा that will be piperidine, जो कि reduced form of pyridine है, it is known as piperidine। पाइपरिडीन का फर्दर ऑक्सीडेशन जब किया जाए, तो ऑक्सीडेशन का मींस यहाँ से एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जो भी हर एक कार्बन एटम के ऊपर है इंक्लूडिंग दिस नाइट्रोजन, दैट विल बी रिमूव्ड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड ऑन हीटिंग वी गेट pyridine। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ pyridine। देन सेकंड प्रिपरेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, सेकंड वाली एग्जाम में पूछी जा सकती है। Second preparation में you can see this is one acetylene molecule. Acetylene is ethyne, CH triple bond CH. This is second acetylene molecule, that is one C triple bond C. और साथ में एक मॉलिक्यूल किसका है, HCN, this is H, हाइड्रोजन साइनाइड। सो 2:1 रेशियो में अगर इथाइन और हाइड्रोजन साइनाइड को हम मिक्स करते हैं, तो on mixing these two gases and then red hot heating करेंगे, तो there will be ring closure। ring closure कैसे होगा, ये मैंने एरोज बना रखे हैं कि ये बॉन्ड दोनों कार्बन के बीच में जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड बचा, इधर कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड इधर आएगा एंड दिस विल, so there will be a ring closure which will result into the formation of pyridine। this is important, ये वाली preparation। नेक्स्ट प्रिपरेशन है रिंग एक्सपेंशन फ्रॉम द पायरोल। हम ऑलरेडी जब पायरोल के केमिकल रिएक्शंस कर रहे थे उधर इन डिटेल वी हैव डिस्कस दिस रिंग एक्सपेंशन के अंडर बेसिक कंडीशंस कार्बीन लाइक स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड एंड दैट कार्बीन इट अटैक्स दिस कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पायरोल रिंग की अटैक होती है, आफ्टर विच, क्योंकि ये जब पकड़ता है CH2 जो भी मेथिलीन कार्बीन सॉरी बनेगा, मिथाइल कार्बीन जब बनेगा तो वो क्या करेगा, वो कार्बन 2 के साथ भी बॉन्ड बनाएगा और कार्बन 3 के साथ भी, इस तरीके से 3 मेंबर्ड रिंग विल बी फॉर्म, छोटा सा बिगिनिंग में। आफ्टर दैट वो पूरा क्लीवेज होके देयर विल बी अ न्यू बॉन्ड फॉर्म बिटवीन दिस कार्बन, कार्बन जो है ये वाला, इट विल कम इन बिटवीन कार्बन 2 and 3 and there will be a ring closure। So we have already discussed this preparation in detail and I'll not go into the details further। then next comes the chemical reactions। अच्छा, उसके अलावा भी preparation है। this is known as picoline, where with respect to pyridine at 3 position we have a methyl group। so picoline की जब oxidation होती है, we know that this potassium dichromate is a oxidizing agent। under acidic condition हमारे पास oxygen generate होती है, that oxygen is oxidizing this methyl group। So methyl group की जब oxidation होगी, it will get converted into COOH group and this is known as nicotinic acid। इसको nicotinic acid को further जब हम heat करते हैं, because ultimate हमारा target है to get pyridine
एंड ये मॉलिक्यूल यहाँ से निकले, मतलब दैट इज CO2 इज एलिमिनेटेड आउट. सो कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में ऑन हीटिंग pyridine is obtained and CO2 is lost out. ये वाली preparation भी important है. Then next preparation is from tetrahydrofuryl alcohol. मैं ये सी मैंने यहाँ पे रिंग के बीच में डबल बॉन्ड्स नहीं लगाए हैं. इट मीन्स इट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान. इसको भूल जाइए फिलहाल. ये वाले स्ट्रक्चर को अगर हम भूल जाए तो दिस इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान. And at 2 position we have this alcohol group, so that is why it is known as tetrahydrofuryl alcohol. फ्यूराइल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये CH2 ग्रुप है इधर. अगर CH2 नहीं होता तो फ्यूरान होता. Then it is NH3. इसके साथ जब दोनों को मिक्स करेंगे in the presence of alumina on heating, NH3 में से नाइट्रोजन will be exchanged with the oxygen, और यहाँ से इसके जो दो हाइड्रोजन है दैट विल बी गोइंग विद ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल इज लिबरेटेड आउट. दूसरे केस में ये OH है दैट विल आल्सो कंबाइन विद वन मोर हाइड्रोजन व्हिच इज गिवन बाय दिस अमोनिया, एंड टू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर लॉस्ट आउट. ऑल्सो ये जितने भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन हैं, क्योंकि ये है रिड्यूस फॉर्म, वो सारे ही एलिमिनेट होंगे इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, और बाकी रिंग क्लोजर के साथ alternate position पे double bond will be there. So this is the preparation of pyridine. Then comes the chemical behavior or the chemical properties. So जो ये first मैंने star mark करके रखा है that is basic behavior. Pyridine actually is basic, और it is a strongly basic in nature in comparison to pyrrole जिसको हम देखें. अब क्यों है ये बेसिक, ये रेड में आई हैव रिटन दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम, इट हैज बेसिक बिहेवियर. और बेसिक बिहेवियर कैसे जस्टिफाई हो रहा है, ये रिएक्शन देखिए. दिस इज pyridine. pyridine के ऊपर ये जो लोन पेयर है दैट इज इजीली अवेलेबल फॉर द इलेक्ट्रोफाइल टू अटैक. जैसे एग्जांपल में pyridine को जब हम HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो वी नो दैट HCl इज एन एसिड, और इसकी आयनिक फॉर्म्स कैसे होंगी, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. So this H positive will combine with nitrogen, lone pair of nitrogen. एक ये बॉन्ड बनेगा NH बॉन्ड, और ओवरऑल क्या होगा कि नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, जो मैं इसको चाहे यहाँ लिखूं चाहे मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ. स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर भी पॉजिटिव चार्ज लिख सकती हूँ. तो सॉल्ट इज फॉर्म विच इज नोन एज pyridine hydrochloride. Similarly, if you look this at this reaction, so we have methyl iodide, and methyl iodide may we know that methyl is carbon or iodine is a halogen which is having more electronegativity than carbon, so it will be negatively charged and this will be positively charged. So again, positive charge will take up the lone pair of nitrogen, it will form bond with nitrogen, so we will have methyl pyridine iodide will be formed. ये जो दो रिएक्शंस हैं ये जस्टिफाई कर रही हैं कि जो लोन पेयर नाइट्रोजन का पड़ा है वो रेजोनेंस में नहीं है. तो अभी हमने बिगिनिंग में ही ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में आई मेड दिस क्लियर कि sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में अलग से लोन पेयर पड़ा और एक p ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन पेयर है. जो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, सॉरी, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, जो p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है दैट इज द पार्ट ऑफ रिंग रेजोनेंस. But the lone pair is not the part of ring resonance, means it is easily available for the incoming electrophile. Up next comes the reaction that is the electrophilic substitution reaction. Now you read this which I have written in red, that is it does not undergo electrophilic substitution easily due to lesser electron density on the ring. अब ring के ऊपर electron density क्यों कम हो गई, क्योंकि नाइट्रोजन जो है one thing that is more electronegative in comparison to carbon. ऊपर से नाइट्रोजन का कंट्रीब्यूशन इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. अब अगर इसको ज्यादा अच्छे से देखें तो यू कैन सी द रेजोनेंस व्हिच इज देयर इन pyridine. रेजोनेंस देखिए कैसे होगा. आप इस तरीके से pyridine बनाएं एंड वी नो दैट हमेशा नंबर 1 इज गिवन टू द एटम व्हिच इज हैविंग हायर एटॉमिक नंबर. सो नाइट्रोजन विल गेट 1 नंबर, then immediately अगला कार्बन 2 3 4 5 and 6. this is how we will number it. तो जो ये फर्स्ट डबल बॉन्ड है विच इज बिटवीन नाइट्रोजन एंड कार्बन 2, उसकी शिफ्टिंग होगी. रेजोनेंस कैसे होगा, कहीं से तो शुरू होगा. so resonance में the shift between the nitrogen and carbon 2, the electron pair
आउट ऑफ कार्बन, आप बोलोगे कि इस तरफ को क्यों नहीं गया, कार्बन 2 को क्यों नहीं गया, एंड वाई ऑन नाइट्रोजन, ये एरो नाइट्रोजन की तरफ को क्यों लग रहा है? इसके पीछे रीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, बिकॉज ऑफ विच जो ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स नाइट्रोजन एंड क्रिएटिंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन नंबर 2। नेगेटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन के ऊपर एंड पॉजिटिव चार्ज onto the carbon number 2. Now this positive charge, it is in ring resonance. इसके साथ में alternate position पे we have two double bonds. So इस तरीके से ये resonance चलेगी कि next case में bond positive charge will be going to fourth position, then it will go to sixth position and finally we'll have this. तो ये जो रेजोनेंस है इससे आप क्या देख रहे हैं कि रिंग के ऊपर क्या कौन सा चार्ज चल रहा है, पॉजिटिव चार्ज, जबकि नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। और इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होके रिंग पे लगे तो उसके लिए हमारे को रिंग में नेगेटिव चार्ज चाहिए, दैट रिंग शुड बी having a richer electron density on the ring carbons instead of the heteroatom. Only then we can say that electrophile can get substituted onto the carbon. जैसे पायरोल, फ्यूरान और थायोफीन में हो रहा था। इधर में रिंग के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की कम है। अब एक रीजन तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, दूसरी रीजन क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल जब आएगा, इट इज कमिंग विदाउट इलेक्ट्रॉन, तो उसको सबसे इजीली कहाँ इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, दैट विल डेफिनेटली ट्राई टू फॉर्म द बॉन्ड विद दैट एटम ओनली इन द रिंग या pyridine के केस में। तो इलेक्ट्रोफाइल व्हेनेवर इट विल कम क्लोज टू pyridine, उसको इजी एक्सेस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, द वन विच आर प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। तो दिस रिएक्शन दिस रिएक्शन विल प्रूव, एक तो ये बात होगी कि ये तो बेसिक है, इसके पास लोन पेयर है, एंड सेकेंडली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग की कम है और नाइट्रोजन की ज्यादा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल विल प्रेफर टू फॉर्म बॉन्ड ऑन नाइट्रोजन इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग ऑन द रिंग कार्बन। सो ये रीजन है दैट दे आर having low reactivity towards the electrophilic substitution reaction. Then अब सपोज कि ऑफ कोर्स ऐसा तो है नहीं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं होंगी, दे विल अकर, बट नाउ वी विल लुक इनटू कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होनी है because it is also aromatic in nature. So on which position preferably the electrophile can come and form bond. तो एक चीज तो अगर आप यहाँ देखिए, ये वाली जो रेजोनेंस मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ पे, यहाँ से भी हमें थोड़ी सी हल्की सी इंफॉर्मेशन मिल जा रही है कि इलेक्ट्रोफाइल जो है दैट कैन कम एट पोजीशन नंबर 3 and 5, जहां पे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है थोड़ी सी कंपैरेटिवली बाकी पोजीशन पे, पोजीशन नंबर 2, पोजीशन नंबर 4 एंड पोजीशन नंबर 6, रेजोनेंस में अगर आप देखेंगे so though all these three positions will be having positive charge on the ring, तो वहां पे आके तो इलेक्ट्रोफाइल लग नहीं सकता है। यहाँ से इस रेजोनेंस से क्लियरली ये इंडिकेशन हो रही है, आप देखिए कार्बन 2 पे पॉजिटिव चार्ज आया, फिर कार्बन 4 पे पॉजिटिव चार्ज आया एंड कार्बन 6 पे भी पॉजिटिव चार्ज आया। तो यहाँ से भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन तो आपको मिल गया कि कार्बन 2, 4 एंड 6 आर नॉट प्रोन फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, और उसको ज्यादा अच्छे से जस्टिफाई करेंगे यूजिंग द मैकेनिज्म ऑफ ओरिएंटेशन व्हेन द इलेक्ट्रोफाइल इज कमिंग on these positions. So first when we look into the attack at third position, तो third position पे आके attack होता है, मतलब bond between third and fourth carbon will be completely shifting onto carbon number 3, और इसकी वजह से कार्बन 4 के ऊपर डेवलप होगा पॉजिटिव चार्ज। ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया। उसके बाद we can see that there is a resonance between the double bonds present within the ring. तो फिर फोर्थ पोजीशन के बाद यहाँ से एरो अल्टरनेट पोजीशन पे जाके आए तो पॉजिटिव चार्ज इज कमिंग ऑन सिक्स्थ पोजीशन, देन फाइनली वी कैन सी दैट पॉजिटिव चार्ज इज शिफ्टेड टू द पोजीशन नंबर 2। तो इस तरीके से वी हैव 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, और इन तीनों कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में आप देखो तो नाइट्रोजन एटम जो है वो न्यूट्रल रही, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, उसके ऊपर ऐसा कोई पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हुआ।
अब हम अगला देखते हैं कि अगर हमारे पास अटैक होता है पोजीशन 4 पे, पोजीशन 2 को मैं बाद में डिस्कस करूंगी क्योंकि उसके लिए आई शेयर अनदर फाइल। कार्बन 4 पे जब अटैक होता है तो ये जो बॉन्ड है बिटवीन 3 एंड 4 दैट विल शिफ्ट ऑन टू द फोर्थ पोजीशन। तो पॉजिटिव चार्ज किधर क्रिएट हुआ? थर्ड कार्बन पे। इलेक्ट्रोफाइल आके लग गया फोर्थ कार्बन पे एंड द पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड एट थर्ड पोजीशन और फिर ये ऑल्टरनेशन में चला। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जो पॉजिटिव चार्ज, ये वाला जो स्ट्रक्चर है जहाँ पॉजिटिव चार्ज हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर आ रहा है, नाइट्रोजन होल्डिंग अ पॉजिटिव चार्ज at when the attack is at position number 4 will be the least stable or the least contributing structure. Reason being, nitrogen is more electronegative than carbon and it is holding a positive charge. Because of which जो अटैक है एट फोर्थ पोजीशन वो फिजिबल नहीं है। ये सेकंड जस्टिफिकेशन है इसकी। पहली जस्टिफिकेशन तो हमने ऑलरेडी देख ली थी दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है पोजीशन 3 और 5 पे अप टू सम एक्सटेंट है, जबकि पोजीशन 4, पोजीशन 2 और पोजीशन 6 पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो ये एक रीजन है दैट C4 अटैक विल नॉट बी प्रेफर्ड। इसके साथ में आई शेयर C2 अटैक का भी एक, आई विल शेयर अनदर फाइल जहां से C2 अटैक वी विल सी। वेट, तो इधर देखिए, अब जब C2 अटैक आप बनाएंगे ना तो इसको इस तरीके से बनाना है दैट डबल बॉन्ड जो है वो नाइट्रोजन और कार्बन 6 के बीच में रखना है। वो नाइट्रोजन और कार्बन 2 के बीच में ना होके नाइट्रोजन एंड कार्बन 6 के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए, तब आप उसको इजीली बना पाओगे। अब अगेन जब C2 पोजीशन पे अटैक होता है तो 3 और 2 पोजीशन का इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा पूरा 2 पे शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया थर्ड पोजीशन पे। एंड देन वो पूरी रेजोनेंस में जब चल रहा है पॉजिटिव चार्ज ऑन टू द रिंग रेजोनेंस, तो इस केस में भी अगला पॉजिटिव चार्ज आया फिफ्थ पोजीशन पे, देन अगला पॉजिटिव चार्ज आया नाइट्रोजन पे, फिफ्थ के बाद आ जाएगा वो नाइट्रोजन पे। तो जो C2 अटैक हो रहा है उसमें भी हम देख रहे हैं कि ऐसा ही स्ट्रक्चर बन रहा है जैसा C4 अटैक में बन रहा था, where nitrogen atom was getting a positive charge. It means that these type of structures where the more electronegative atom will be having positive charge will be the least contributing structure or the most unstable structure, because of which ये जो attack है that is not favored. Up again we'll go back to pyridine which we were doing. Wait a minute, I'll share it with you. तो pyridine में यहाँ से जो भी ये तीनों पोजीशंस के अटैक हमने देखे C3, C4 एंड C2। देखिए 3 इज आइडेंटिकल टू 5, तो C3 बोलूं या C5 बोलूं वन एंड द सेम थिंग। 2 is identical to 6, so these two positions are also same. And fourth is different. Or what is the conclusion out of the three? That is a resonance plus the orientation of electrophilic attack. वहां से हमारे को क्या पता चल रहा है कि ये जो कोई स्ट्रक्चर बन रहा है तो पोजीशन 3 ही फेवरेबल पोजीशन होगी फॉर द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड नॉट अदर पोजीशन। और दूसरा ये बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक अटैक थोड़ा ड्रास्टिक कंडीशंस में होगा। उसके पीछे रीजन ये है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक क्योंकि रिंग के ऊपर जो एनर्जी है, रिंग की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सॉरी, दैट इज वेरी लो and nitrogen is having the maximum electron density. Now only 3 types of electrophilic reactions are possible in case of pyridine. तो वो भी conditions उसके लिए बहुत harsh conditions are required. वो जैसे unlike pyrrole or any other aromatic substance जो कि easily react कर सकता है, even benzene से भी ज़्यादा harsh conditions are required for the attack of electrophile on pyridine. The first is bromination. Bromination is done by directly treating bromine with the pyridine and heating it up to this temperature. जहाँ पे कि थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन आके लगता है 3 ब्रोमोपेरिडीन और 3,5 डाइब्रोमोपेरिडीन कैन बी ऑब्टेन्ड।
When nitration is done, so nitration is feasible only when we are employing KNO2 and H2SO4, and on heating, the nitrogen can be obtained. And for sulfonation is done using H2SO4 on heating at a temperature of 623 degrees Kelvin. Sulfonic group at third position is coming, and electrophilic substitution can be occurred in case of pyridine. So pyridine की electrophilic substitutions के बारे में आज के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया, including the structure and preparation. So this is all about the pyridine. अभी तक pyridine का some more lectures are there. That is the nucleophilic. अब देखिए हमने बोला कि इसमें electrophilic substitution तो होती नहीं है easily. It means because a ring is having a positive charge, it is capable of undergoing the nucleophilic substitution reaction. So nucleophilic